So hello everyone in the Ansarkari again, and today is the 25th November. तो आज भी हम permutation and combinations के दो different questions लेंगे, and we have our partners who will explain this concept थोड़े कम technical way में और थोड़ी आसान भाषा में, ताकि CSET के questions आसानी से solve किए जा सकें. So अब देखते हैं question number 76 we have of the paper 2023 CSET. ये question कह रहा है कि AB and CD are two-digit numbers. Multiplying AB with CD results in a three-digit number DEF. Adding DEF to another three-digit number GHI results in 975. और ये बता रहा है कि जो A B C D E F G H I ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं. E की वैल्यू 0 दी हुई है, F की 8. तो ये पूछ रहा है कि A प्लस B प्लस C का सम क्या होगा. तो प्रेरणा आप थोड़ा एक्सप्लेन करें इसे. Okay, so as Pravesh just mentioned, AB and CD are two-digit numbers. Multiplying AB with CD, so basically we need to multiply these two-digit numbers. So we can write them in the form AB multiplied by CD. This will be okay. Then this results in a three-digit number DEF. So suppose we write here DEF. So this is the resultant answer. Adding DEF. Then the next line says adding DEF to another three-digit number GHI. So as DEF is a three-digit number, we'll add it to another number GHI, which is also a three-digit number. So this is the separate thing now. This results in 975. Then they say further A, B, C, D till I are distinct digits. Yani ke all the letters from A till I, they constitute different digits. यानी कि different है, कोई भी same नहीं है इनमें से. If E is equal to 0 and F is equal to 8, then what is A plus B plus C equal to? तो बेसिकली हमें A, B और C की वैल्यू निकालनी है, एंड फॉर दैट हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा. वाई नीचे से? बिकॉज यहाँ पे जिस एरिया में जितनी ज्यादा वैल्यूज और जितने ज्यादा हिंट्स गिवन होते हैं, हम हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं. इट डजंट मैटर कि निकालना क्या है, दैट शुड जस्ट बी इन आवर माइंड. I will write the information given. जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लें A, B, C, D, E, F, G, H, I. So these are all the letters, and इनमें से हमें बता रखा है that E is equal to 0 and F is equal to 8. तो one thing that we know is कि बाकी के 0 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं, इनमें से 0 और 8 किसी और के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं सबके, फ्रॉम A till I. So the first thing that we'll focus upon is, so we'll write DEF here. So as we know that E is equal to 0, we'll write 0 here, and F is equal to 8. So we'll write 8 here. Then we need to add it to GHI. So we write here 975. Now it is pretty obvious that we need to add something. That this I here is something. We need to add this particular thing to 8 to get 15 here. Because 25 isn't possible because I की वैल्यू जो है वो 9 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ही डिजिट है. तो जाहिर सी बात है that 8 plus I will be equal to 15. So 1 will go to the carry part and 5 will be left here as the unit digit. So it is pretty evident that the value of I here will be equal to 7. So we can write here that I is equal to 7. So we'll slowly try to find out as many values possible of these letters gradually, and then we'll reach up till A, B, and C. So this one thing that we know is that I here is equal to 7, as we just now found out, and then 1 here goes as carry. Now we know that 1 plus 0 is supposed to be equal, 1 plus 0 plus h is equal to 7. It has to be equal to 7. Now obviously it cannot be 17 या उससे कोई बड़ी value, because h again can, the highest value that h can have is equal to 9. तो maximum value यहाँ पे 10 हो सकती थी, but main तो हमें 7 चाहिए. It cannot be 17 or any other number. तो h की value will be equal to 6. तभी तो 6 plus 1 will be equal to 7. So here we can write that h is equal to 6. Now, what we know is that D plus G are supposed to be equal to 9.
The leftover numbers that we have now are, for example, if I write it quickly, 1, 2, 3, 4, 5. 6 is done, 7 is done, and 8 is also done, right? And even if we write 9, we'll just consider it later on. But since we know that 0 we have used, so 9 plus 0 अगर हम करते भी है तो it won't work because 0 is already designated to E, the number 0, right? So now we need to find out कि जो possible numbers है, जो leftover numbers है, see here we have options 1, 2, 3, 4 and 5. 5 4 तो यहाँ पे हाँ we have 5 letters available and इन्हीं में से इन्हीं 5 letters में से इन्हीं को ही मतलब 5 numbers दिए जाएंगे from 1 till 5. So we need to find out कि जो sum होएगा D का और G का that needs to be equal to 9. So out of these 5 numbers, we can know that 4 plus 5 will be equal to 9. Hence, we know that D and G are equal to 4 and 5. But we do not know that which one out of these is 4 and which one is 5. प्रेरणा And just a second. So, since we know this one particular thing, but अब हमें identify करना है कि इनमें से कौन सा is 4 and कौन सा is So when we move on to identify that which one of these इनमें से कौन सा 4 and कौन सा 5 है, तो as we know कि इन सब की values पता लग गई है, we'll focus upon D and G now. So here if we try to focus upon this thing, बेसिकली प्रवेश यहाँ पर 5 ऐसा नीचे करो प्रेरणा थोड़ा नीचे, हाँ। तो 1 2 3 4 5 9 ये प्रेरणा ने अभी तक निकाल दिया कि ये सब वैल्यूज मेरे पास है, ABCD एंड जी। बाकी EFHI का वैल्यू पता है मुझे। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A+B+C = 2। अब पता है मुझे कि D और G का 4 और 5 में हो सकता है, तो A और B और C का 4 और 5 तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे पता है। नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अब A+B+C, तब A कौन है, B कौन है, C कौन है, उससे मतलब ही नहीं है फाइंड आउट करने का। इसमें बस ऐड करना है 1 + 2 + 3 और +9। अब इसमें से जो ऐड करने से आंसर निकलेगा वही आंसर आएगा। क्यों? अगर 9 अगर ऐड करेंगे 3 में से तो 12 हो जाता है, तो आंसर जो दिया हुआ ना वो सिंगल डिजिट है, इसका मतलब छोटा हुआ नंबर ऐड करना होगा। तो 1 + 2 + 3, आंसर 6 आएगा। आंसर है ना इसका? हाँ हाँ ठीक है। प्रेरणा। that can also be the case and the another way can be कि हम directly ऐसे mind लगाएं कि जैसे हमें यहाँ पे पता है कि D can either be 4 या फिर वो 5 हो सकता है, फिर हमें ये पता लग रहा है कि जो F की वैल्यू है ना that is equal to 8, तो जाहिर सी बात है कि 5 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा लास्ट में वो 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 8 को अगर हम मतलब 4 को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे 4 या किसी भी उसके मल्टीपल को, तो फिर यहाँ पर 8 आना चाहिए, इस वजह से तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे D's वैल्यू विल बी इक्वल टू 4, तो इसलिए हमें ऐसे D का पता लग गया एंड दी लेफ्ट ओवर वैल्यूज विल बी इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसे छोटी लाइन में बोलूं तो बेसिकली सारे जो डिजिट्स हैं वो यूज हो चुके हैं, सिर्फ 3 डिजिट्स ऐसी हैं जो बची हैं 1 2 3, तो उनको प्लस नहीं, कर और दो 1। 9 भी है, और 9 भी है। 4 5 हो चुका D और G में, 9 भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 9 में कोई ऐड करेंगे, अगर A का वैल्यू 9 हो सकता है या तो B का डबल 9 हो डिजिट जाएगा, आ C का 9 जाएगा। होगा, तो डबल डिजिट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली इतना लंबा नहीं कभी पूछेगा। तो बचा क्या, ठीक 9 हटा दोगे तो बाकी 1 1 2 और 3 बचा सिर्फ, तो 1 तो ऐड ठीक कर है। दो। तो ठीक मुझे है। अभी भी नहीं पता A और B और दैट C का कैन बी वैल्यू द क्या है, शॉर्टर वे टू लेकिन ऐड कर अंडरस्टैंड। दो। ठीक ठीक, ओके चलो। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, यस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आज। तो ये कहता है कि एक फ्लैग है which has to be designed with 4 horizontal stripes using some or all of the colors red, green, yellow। तो हमारे पास 3 कलर है, 4 horizontal stripes खींचनी है और उससे झंडा बनाना है। What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent stripes have the same color? तो बेसिकली ये क्वेश्चन है हमारा परमुटेशन का, जहाँ पे हमें 4 P और 3 एक बार करना पड़ेगा। आई होप प्रेरणा आई एम राइट। डायरेक्टली नहीं है प्रवेश,
प्रेरणा बताओ इसको। हम्म तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स की बात हो रही है एंड दी ओनली कंडीशन इज कि कोई भी 2 एडजेसेंट स्ट्राइप्स जो है वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। एंड दी ऑप्शंस दैट वी हैव है रेड, ग्रीन एंड येलो। तो इनके बेसिकली यहाँ पे कितनी भी स्ट्राइप्स हैं, बस हमें ये फोकस करना है और हमें इसे करना है कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मतलब आपने अगर थोड़ा हम सा इसमें देखें डिफरेंट तो स्ट्राइप्स बनाया, डिफरेंट। स्ट्राइप्स बना दो एक बार, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बना दो। ये तो बॉक्स हो गया। ओके, अच्छा हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप, हाँ ओके, हाँ हाँ ऐसे। तो वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे। अभी जो ठीक है। एडजेसेंट है, मतलब एक एक ऊपर नीचे जो होगा ना, सेम नहीं कलर होगा, नहीं कलर होगा ये, हम्म वो बात है। अब करो। सुन। तो फॉर द फर्स्ट टाइप द नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव है 3। अब ऑप्शंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन से ही केसेस बनेंगे। सपोज अगर हम ऐसे मान के चले कि सबसे पहले अगर हमने रेड ली, तो जो सेकंड वाले में होगा उसके उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, ग्रीन भी और येलो भी, अगर हम ये मान के चलते हैं सेकंड यानी कि इस वाली स्ट्राइक के लिए, दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक। फिर थर्ड पे अगर हम जाएंगे तो अगेन ग्रीन के अलावा वी हैव ऑल दी ऑप्शंस लाइक येलो एंड रेड होएगा हमारे पास, क्योंकि बस वो ग्रीन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जब ग्रीन के बाद हम थर्ड वाली स्ट्राइक पे जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है, सेकंड की है, थर्ड की, इस हिसाब से बेसिकली इस तरीके से समझना है इसको। तो ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट वन विल बी 3, देन सेकंड के लिए जो ऑप्शंस विल बी 2, जैसे यहाँ पर ये वाला केस है। देन अगेन थर्ड के लिए भी फिर यही केस हो जाएगा 2। अगेन इफ यू गो टू दी फोर्थ थिंग, देन यहाँ पे येलो के अलावा इट कैन बी ग्रीन एंड इट कैन बी रेड, तो दिस विल बी द केस। और ऐसे जैसे ये बाकी के केस भी हैं, दिस इज द रीजन वाई वी मल्टीप्लाई। प्रवेश से बता, तो समझ में आया? नहीं। नहीं समझ में आफ्टर आया? बता। मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू 20। देखो, अब मुझे नहीं पता है कि पहली बार जो स्ट्राइप जो कलर होगा, कलर करो प्रेरणा, पहले वाला स्ट्राइप में यहाँ पर आर, ग्रे, रेड, ग्रीन, येलो कुछ भी हो सकता है, ये समझ में आ गया तुमको? हाँ ठीक है। तो इसमें 3 केस है, आर भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अब सेकंड में आते हैं। अब जब फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर आर शुरू में होता है तो हम सेकंड में क्या लेंगे? जी और वाई में से, हम्म क्योंकि दो एडजेसेंट में सेम कलर नहीं होगा, ठीक है? हम्म अगर शुरू में अगर जी होता है तो नीचे में क्या लेंगे? आर और वाई। शुरू में अगर वाई होता हम्म है तो नीचे में क्या लेंगे? आर और जी। तो 2 होगा, 2 कंडीशन है सेकंड वाला में, ए समझ में आ गया? ठीक ठीक है। अब थर्ड में आते हैं। अब थर्ड के लिए फर्स्ट कंडीशन से तो मतलब ही नहीं है, मेरे को थर्ड के लिए सिर्फ सेकंड कंडीशन देखना है। हम्म कि अगर मान लो अगर नीचे से जो थर्ड वाला जो है, ए बी सी डी मार्क कर दो प्रिंट एक बार, ऊपर से ए बी नहीं, सी मैं डी। समझ गया हूँ, ठीक, मतलब मैं हाँ बोलता हूँ 2 मिनट। हाँ तो बोलो। बेसिकली 4 हमारे पास स्ट्राइप है। ये बोला जा रहा है कि जो दो एक साथ जुड़ी हुई स्ट्राइप है, दोनों में सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो हाँ बेसिकली ऊपर वाली में तो 3 कलर हमारे पास ऑप्शन है, कोई भी भर हाँ, दो। 4 भी हो सकता दूसरे है। वाले, हाँ एक हाथी दूसरे वाले करो में या जब फिर नेक्स्ट जाएंगे, करेंगे, बड़ा करेंगे फिर इसको। दूसरे वाले में जब जाएंगे तो पहले वाली यूज नहीं करेंगे, जो पहला यूज कर दिया तो 2 बचे। जब तीसरे वाले में आए तो दूसरे वाले में जो यूज कर दिया वो तीसरे वाले में नहीं होगा, तो 2 बचे यहाँ भी। इसी तरीके से चौथे में। सही है। हाँ ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बड़ा कर दिए तो 4 की जगह 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप कर दिए, और समझो कि 5 कलर हो गए, और 2 एडजस्टमेंट का 3 एडजस्टमेंट कर दिए, तब यही कॉन्सेप्ट है इसमें, वही मैं ठीक कॉन्सेप्ट है। समझा रहा था इसको। एक बार शेयर कम करो प्रिंट इसको, हटाओ शेयर। Okay, so thank you so much for being with us, and we'll keep continuing the series of the CSAT. Stay tuned with us. Thank you.